Okay, so now we'll be starting with balance sheet. Balance sheet essentially tells you the ability of a company to pay its short-term liabilities, that is, what is the liquidity that the company has, and to the ability to pay off long-term liabilities, which is also called solvency of a company. And at the same time, it also tells us what is the ability of the company to distribute profits among equity shareholders. कितना पैसा बच जाएगा अगर सब कुछ बेच देते हैं, so as to know what is the net assets, equity shareholders का कितना वैल्यू है, book value है as of this date, right? So balance sheet tells you the ability to pay short-term liabilities, that is liquidity, long-term liabilities, that is solvency, and equity shareholders, right? So balance sheet में होता क्या क्या चीजें हैं? Assets, liabilities and equity. Assets is equal to liabilities plus equities. ये liabilities और equity अगर एक साइड रखूं और asset एक साइड रखूं, they should ideally be equal. It is also called fundamental accounting equation. So assets क्या क्या होते हैं, liabilities क्या क्या होते हैं और equity में क्या क्या आते हैं? Let's try to understand that. Starting with our assets. Assets में first up is non-current assets. Non-current assets मतलब क्या? जो कि हमारे साथ एक साल से ज्यादा रहने वाले हैं या फिर वन ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा रहने वाले हैं. सो आई विल बी रिपीटेडली यूजिंग 1 ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल. ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? एक कंपनी मैन्युफैक्चर करके उनको स्टोर करके इन्वेंट्री बना के बेचती है चीजें और बेचने के बाद उनसे फिर रिसीवेबल्स मिलते हैं एग्जैक्टली जब कैश मिलता है. दैट द होल प्रोसेस इज कॉल्ड वन ऑपरेटिंग साइकिल. बनाने से लेके कैश आने तक मेरे को जब तक पैसा मिल जाता है उसको एक ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं. सो ऑल द नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स आर आइडियली बाइफर्केटेड ऑन द बेसिस ऑफ इधर वो एक साल के अंदर अंदर खत्म होने वाले हैं तो करंट एसेट्स हो जाते हैं या फिर एक साल से ज्यादा रहने वाले हैं तो वो नॉन करंट एसेट्स हो जाते हैं. बट ये 1 ईयर जरूरी नहीं है हमेशा ये 1 ईयर लेके चलें. वी शुड बी लुकिंग एट 1 ईयर और द ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लॉन्गर. ठीक है, जो भी साइकिल बड़ी है वो देखना है. ऑपरेटिंग साइकिल में could be your 15 months whereas this is 1 year. तो हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे एंड हो सकता है कि वो ऑपरेटिंग साइकिल इज ऑफ 6 months एंड आवर फाइनेंशियल ईयर इज ऑफ 1 year. तो विल बी मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर 1 year, राइट? सो आई विल बी रिपीटेडली यूजिंग 1 year और ऑपरेटिंग साइकिल so that you know what is operating cycle now. So non current assets वो होते हैं जो कि हमारे साथ एक साल से ज्यादा या ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा रहने वाले. फर्स्ट अप इज PPE which is property plant and equipment. Property plant and equipment are essentially वो ऐसे फिक्स्ड एसेट्स जो कि मेरे को either to produce my goods either to service my offering हेल्प करते हैं. If I am a hairdresser, the blow dryer और वो अगर मेरे पास है तो that could also be my equipment. Whereas let's say I am a car manufacturer, तो मेरे पास जो प्लांट है that is also PPE. So essentially मेरे को ये देखना है कि गुड्स और सर्विस को देने के लिए जो भी मेरे पास PPE है that will be categorized as my fixed assets. अब PPE में IFRS और GAAP में अलग अलग ट्रीटमेंट है. अब जो भी चैप्टर्स आएंगे, जो भी रीडिंग्स आएंगे, we will need to understand that IFRS will say something else, GAAP could say something else, but ideally दोनों का गोल क्या है? The goal is to present the financial statements in a very lucid manner to the end user. ठीक है? IFRS बोलता है कि PPE का जो वैल्यूएशन है that could be either on cost basis और revaluation basis. Revaluation क्या होता है, cost क्या होता है, that will be covered in detail in the coming readings. बट आप ये समझिए कि अभी IFRS क्या बोलता है? You can show your PPE either on the cost. Cost is कितने पे मैंने लाया था minus all the accumulated depreciation. That is called cost method. So IFRS says आप cost पे दिखा सकते हो या revaluation पे दिखा सकते हो. Revaluation is
essentially the fair value of the assets, जो मार्केट में आप कितना फेयर वैल्यू है माइनस एनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. सो दैट इज IFRS बोलता है आप इधर ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट या रिवैल्यूएशन पे दिखा सकते हो. गैप बोलता है फेयर वैल्यू इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, हो सकता है कंपनी कुड मैनिपुलेट इट्स एंड यूजर. सो गैप बोलता है खाली कॉस्ट मेथड ही आप अप्लाई कर सकते हो, राइट. सो IFRS टेल्स यू कॉस्ट और रिवैल्यूएशन, गैप टेल्स यू ओनली कॉस्ट मेथड. कॉस्ट मेथड में कैसे हम डिटरमाइन करेंगे वैल्यू अमोर्टाइज्ड कॉस्ट क्या है, IFRS में रिवैल्यूएशन कैसे होने वाला है, इम्पेयरमेंट क्या होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. देयर आर वेरियस टॉपिक्स दैट विल बी delving deeper into in the coming sessions. Other non-current asset is investment property. Investment property is basically whatever money I have parked into an investment that will yield me either rent, either interest, either dividend for a long term basis, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, राइट. आपने ऐसी जगह पे पैसा पार्क कर रखा है, डाल रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, which will yield you benefits year on year. Next up is DTA. DTA is deferred tax asset. Again, this will be delved deeper into in detail in the coming session. But DTA क्या होता है? Just to give you a brief idea, deferred tax asset is basically when your income tax payable is more than your income tax expense. अब ये payable और expense अलग अलग कैसे हो सकते हैं? Income tax payable is what the tax authorities want you to pay. There are certain provisions जिसको हम बोलते हैं income tax accounting, जहां पे कुछ चीजें आपको अलाउड होती है, कुछ चीजें डिसअलाउड होती है. On the basis of tax authorities you plan your books of accounts and get a tax which is called income tax payable. Whereas in the normal जो हम IFRS gap जैसे यहाँ पे बना रहे हैं, we calculate the profit and we get income tax expense, right? So there could be a possibility where the income tax payable जितना मेरे को actually में देना है वो ज्यादा है as compared to the expense that I have recorded. So since I have paid more, I will be recording an asset today क्योंकि ये एसेट का बेनिफिट मेरे को कमिंग टाइम से मिलने वाला है, राइट. आज मैंने ज्यादा टैक्स पे कर दिया है, कल कम टैक्स पे करना पड़ेगा. सो वॉट एवर बेनिफिट आई विल बी गेटिंग इन द फ्यूचर इज कॉल्ड डिफर्ड टैक्स एसेट, राइट. अगेन दिस विल बी टॉक्ड इन डिटेल इन द कमिंग रीडिंग्स. इनटैंजिबल्स, नॉन करंट में लास्ट पार्ट है इनटैंजिबल एसेट्स. इनटैंजिबल एसेट्स आर which cannot be looked at or felt or touched, right? वो intangible assets क्यों है? Because उनको हम देख नहीं सकते हैं या समझ नहीं सकते हैं, but they are there providing us long-term benefits such as trademark, patent, copyright, goodwill, so on and so forth. Intangibles में there are two types of intangibles. One is finite and one is indefinite. Finite मतलब क्या? ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट जैसे जो intangibles हैं, वो intangibles कैसे बने हैं? Because I have filed the patent, I have got the patent and I can know the expense that I have incurred in the total process, right? वो जितना भी खर्चा लगा है उसको मैं कैपिटलाइज कर दूंगा in the name of patent या ट्रेडमार्क, whatever that filing is. बट गुडविल को मैं indefinite मानता हूं. I cannot really say that ये amount exactly I have paid for the goodwill, right? So indefinite goodwill is checked for impairment, whereas finite intangibles are amortized every year. Amortization मतलब basically depreciation of intangible assets, right? अगेन यहाँ पे IFRS और गैप वापस डिफर करते हैं, सेम एज PPE. IFRS बोलता है यू कैन रिकॉर्ड इंटेंजिबल्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट और रिवैल्यूएशन, whereas gap says you can value intangibles only on the basis of cost, right? So again, intangibles will be discussed in detail in the coming session on long-term assets. Coming to the current assets part. करंट एसेट्स में फर्स्ट पार्ट इज इन्वेंटरीज. इन्वेंटरीज इज बेसिकली आपने कुछ गुड्स बना दिए हैं या आधे बन गए हैं
बट वो इस साल या इस ऑपरेटिंग साइकिल में बिका नहीं है, इट इज नॉट सोल्ड येट। सो वॉट एवर इन्वेंट्री दैट यू हैव कलेक्टेड विल बी वैल्यूड। तो इन्वेंट्री में क्या आता है, वो चीजें जो आपने आधी बना दी है या नहीं बनाई गई है बट रॉ मटेरियल के तौर पे पड़ा है। सो रॉ मटेरियल आधी बन गई है या फिर पूरी बन गई है, ऑल दोज फॉर्म पार्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में अगेन गैप और IFRS वैल्यू करने के लिए अलग अलग मेथड लाए हैं। I told you IFRS only allows FIFO and weighted average cost, whereas GAAP allows you FIFO, LIFO and weighted average cost. So LIFO is allowed under GAAP, but it is not allowed under IFRS, right? So inventories पे भी एक पूरा हमारा रीडिंग है, will be going into details, but आप अभी के लिए समझ लो कि IFRS allows only FIFO and WAC, whereas GAAP allows you weighted average cost, FIFO and also LIFO. So on the basis of that काफी चीजें चेंज हो जाती है, राइट? IFRS में आप अपने गुड्स को वैल्यू करते हो ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेसर, बट गैप में यू रिकॉर्ड इट एज कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेसर। अब मार्केट वैल्यू क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, NRV क्या होता है, we'll be discussing that in the inventories chapter. Inventories में एक अलग पॉइंट ये है, there is standard costing and there is retail method. Standard costing method क्या है, आप गुड्स लेके आए, रॉ मटेरियल आए, उसको कुछ मैन्युफैक्चर किया, उसमें कुछ वैल्यू ऐड किया, and you will know the cost that you have incurred, right? So inventory को you can value the cost that is being incurred till इट इज इन टू दैट प्लेस एंड पोजिशन, राइट? आज के डेट पे जो प्लेस पे है, जो पोजिशन पे है, वो बनाने के लिए जितना भी खर्चा लगा है उसको आप इन्वेंट्री बोल दोगे, दैट इज स्टैंडर्ड मेथड। रिटेल मेथड क्या बोलता है, जितना भी आप बेचने वाले हो, जितने पे भी आप बेचने वाले हो, वॉट एवर इज द सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, उसमें से आप माइनस कर दो अपना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। लेट्स सी यू विल बी सेलिंग योर गुड्स एट $100 एंड योर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 20%, आप इसमें से $20 माइनस कर दो, यू रिकॉग्नाइज योर इन्वेंट्री एट 80। दिस इज कॉल्ड रिटेल मेथड। अगेन रिटेल मेथड इज अलाउड ओनली अंडर गैप एंड नॉट अंडर IFRS। सो रिटेल मेथड अगेन गैप में अगर अलाउड होगा तो वो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस पे वैल्यू होगा। ये पूरी की पूरी चीजें हम लोग वापस डिस्कस करेंगे इन द इन्वेंट्री चैप्टर। नेक्स्ट इज अकाउंट रिसीवेबल्स। मैंने किसी को कुछ आइटम बेचा है बट आई हैव नॉट येट रिसीव्ड कैश फ्रॉम देम, राइट? जो भी वैल्यू मैं जिस भी वैल्यू पे मैंने सेल किया है वो वैल्यू अगर मेरे को अभी तक रिसीव नहीं हुई है, दोज आर कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल। आई हैव नॉट येट रिसीव द पेमेंट। सो मेरे लिए तो वो एसेट है बिकॉज मैंने अपना जो ऑब्लिगेशन था वो फुलफिल कर दिया है, बट द पेमेंट इज पेंडिंग। सो इन द कमिंग टाइम्स आई विल बी गेटिंग सम वैल्यू और सम रेवेन्यू इन द फ्यूचर। वो रेवेन्यू का आज हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे अपने इनकम स्टेटमेंट में, बट एसेट साइड पे एक अकाउंट रिसीवेबल बनेगा विच बेसिकली टेल्स मी दैट आई हैव क्रिएटेड एन एसेट दैट विल बी यील्डिंग इन द कमिंग टाइम। नेक्स्ट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज बेसिकली या तो पैसा रोकड़ा, बैंक में जितना पैसा पड़ा है आपके पास, कैश कितना पड़ा है, दोज आर कॉल्ड कैश बैलेंसेस। कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं, those are readily converted, can be converted into cash। जैसे कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, जैसे कि कमर्शियल पेपर्स हो गए, which can be readily converted into cash, उनको हम बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। अगेन these can be converted within a day or two, so hence they are called current assets। Next up is marketable securities. Marketable securities again, which can be converted into cash in a few days time. उनको हम marketable securities बोलते हैं, जिनका market value हम लोग real time measure कर सकते हैं, right? All those instruments that are traded in the public market are called marketable securities, whose value can be determined in the real time। मतलब मैं जब भी चाहूं मैं पता लगा सकता हूं कि वो कितना वैल्यू होल्ड करता है।
यहाँ पे अगेन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, कमर्शियल पेपर्स आ जाएगा, बैंक नोट्स आ जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. And then there are other current assets such as prepaid expenses. Prepaid expenses are basically आपने आज खर्चा कर दिया है बट वो खर्चा रिलेट करता है नेक्स्ट पीरियड से. सो क्योंकि आपने आज ही पे कर दिया है, यू आर रिकॉग्नाइजिंग एन एसेट विच विल बी यील्डिंग यू अ बेनिफिट. उसका बेनिफिट कब मिलने वाला है? इन द कमिंग टाइम. लेट्स से मेरे को कुछ खरीदना है, मेरे को कुछ खर्चा करना है. लेट्स से आई वांट टू डू प्लम्बिंग इन द कमिंग टाइम. मेरे को 1 month फ्रॉम नाउ और 2 month फ्रॉम नाउ आई वांट टू डू अ प्लम्बिंग एक्सपेंडिचर, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, बट मैंने आज वो प्लम्बर को पैसे दे के आ गया हूं. आई हैव पेड फॉर द रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस टुडे. दोज आर कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस वेयर माई मनी हैज गॉन आउट बट उसका बेनिफिट मेरे को कमिंग टाइम में मिलने वाला है. राइट, सो दिस इज माई नॉन करेंट एंड करेंट एसेट्स. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट मूविंग टू लायबिलिटीज. लायबिलिटीज में नॉन करेंट पार्ट में क्या आता है? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लायबिलिटीज. फाइनेंशियल लायबिलिटीज बोले तो क्या? फाइनेंशियल लायबिलिटीज इज लोन्स दैट इज पेएबल. बैंक का कोई आउटस्टैंडिंग पेमेंट हो सकता है. देयर कुड बी अ पब्लिक डिपॉजिट दैट यू हैव टेकन. सो कुछ भी डेट फॉर्म में आपने अगर लिया हो, दोज आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लायबिलिटी. सिंस यू विल बी आस्क्ड टू पे देम बैक, इट इज अ लायबिलिटी. Again, the next one is DTL, which is deferred tax liability. Similar to what we have discussed in DTA, जब आपका इनकम टैक्स पेएबल ज्यादा होता है इनकम टैक्स एक्सपेंस से, जब आपने ज्यादा पे किया है, एक्सपेंस कम दिखाया है, तब आपका DTA बनता है. सिमिलरली जब आप इनकम टैक्स एक्सपेंस ज्यादा दिखाते हो और पे कम करते हो, सिंस यू हैव पेड लेसर टुडे, यू विल बी आस्क्ड टू पे मोर इन द कमिंग टाइम्स. And hence it is a liability. So when your income tax payable is lesser than your income tax expense, you create a DTL. ठीक है? So those are non-current liabilities. Current liabilities की अगर बात करें तो first step is accounts payable. आपने raw material खरीदा किसी से पैकेजिंग मटेरियल खरीदा, but you have not yet paid them, तो वो accounts payable होता है. Whatever you are payable to your creditors. Next is current portion of long term debt. मैंने ये long term debt लिया था, but long term debt का कुछ part is due every year और every quarter, every month, जो भी हो सकता है. तो जितना भी part मेरा due हो गया है, whatever is the outstanding amount that I am liable to pay but I have not yet paid, उसको बोलते हैं current portion of long term debt. राइट. थर्ड वन इज अक्रूड एक्सपेंसेस. अक्रूड एक्सपेंसेस इसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी बोलते हैं. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हुए? सिमिलर टू व्हाट आई हैव डिस्कस्ड हियर. मान लो कि आपका इंटरेस्ट पेमेंट होने वाला है. इंटरेस्ट पेमेंट आपका हर 1 जुलाई को होता है. ठीक है, हर साल के मिडल में आप पेमेंट करते हो एनुअल इंटरेस्ट का, बट यू मेक योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज ऑन 31 दिसंबर. ठीक है, तो ये जो 6 महीने का इंटरेस्ट है, ये आपको पे तो करना नहीं है आज. यू विल बी पेइंग इवन दिस 6 months इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 31 जून. ठीक है, बट क्योंकि ये 6 महीने आपने वो लोन लिया था, उसको इस्तेमाल किया था, दैट पर्टेन्स टू द पीरियड दैट यू आर मेकिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर, वो जो भी अमाउंट है दैट विल बी कॉल्ड अक्रूड एक्सपेंसेस. ठीक है, वो आउटस्टैंडिंग नहीं हुआ अभी तक, अभी आपको पे नहीं करना है, बट यू हैव अक्रूड द एक्सपेंसेस. राइट, वो पर्टेन करता है इस पीरियड से एंड हेंस इट विल बी कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. ठीक है, उसको आप एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट करोगे. राइट, क्योंकि ये 6 महीने का आपने यूज कर लिया है, रिमेनिंग 6 महीने का यूज करके आप 1 जुलाई को पेमेंट कर दोगे. And the last one of current liability is unearned revenue. Unearned revenue मतलब it is diametrically opposite to what I have discussed for prepaid expenses. Prepaid expenses क्या था? आपने पे आज कर दिया है किसी को रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए और बाद में आपको उससे बेनिफिट मिलने वाला है. यहाँ पे अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या है? किसी ने आपको आज पे कर दिया है बट यू विल बी गिविंग आउट द गुड्स एंड सर्विसेज. जो आपका ऑब्लिगेशन है
दैट विल बी फुलफिल्ड इन द फ्यूचर। बेसिकली आपने किसी से अगर एडवांस ले लिया है, एडवांस पेमेंट, तो उसको हम बोलते हैं अनअर्न्ड रेवेन्यू, राइट। अगेन क्योंकि मेरे को ऑब्लिगेशन आ गया है, मेरे को उनको गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर करना पड़ेगा इन द कमिंग टाइम, इट इज एसेंशियली अ लायबिलिटी। सो दोज आर कॉल्ड करंट लायबिलिटीज। आई होप एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर क्लियर्ड। कमिंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ आवर बैलेंस शीट विच इज इक्विटी। इक्विटी में फर्स्ट अप इज कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल। कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल मतलब जितना भी पैसा आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स लेके आए हैं अपने बिजनेस में, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल। कैपिटल में देयर आर थ्री काइंड्स, मतलब आप उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ऑथराइज्ड कैपिटल इज बेसिकली कितने नंबर ऑफ शेयर्स, कितना अमाउंट मैं अपने इक्विटी शेयर होल्डर से ला सकता हूं इन दिस कंपनी। इट इज बेसिकली अ थ्रेशहोल्ड कि कितना मैं ला सकता हूं। इशूड कैपिटल इज एग्जैक्टली मैंने कितना एक्चुअली में मंगाया है। लेट्स से $2 lakh is the authorized capital, out of which only $1 lakh has been brought currently by the equity shareholders, तो इसको $1 lakh को issued capital बोलेंगे, $2 lakh को authorized capital बोलेंगे। Outstanding number of shares क्या होते हैं? Out of the issued capital, there could be instances where the company reacquires the shares from the shareholders. वो बोलेगी कि मैं वापस तुम्हारे shares खरीद रही हूं। So outstanding shares are issued shares minus reacquired shares. तो उसको बोलते हैं current outstanding shares कितने हैं, right? We did this while calculating EPS also, if you remember. ठीक है? Next up is preferred stocks. Preferred stock is मैं यहाँ पे एक preference dividend देता हूं उनको, which is fixed. ठीक है? Fixed भी हो सकता है, floating भी हो सकता है, but currently let's understand कि वो fixed ही है। उन्होंने पैसा तो मेरे को इक्विटी के हिसाब से दिया है, बट उनका जो स्ट्रक्चर है वो डेट टाइप होता है, राइट। दोज आर कॉल्ड प्रेफर्ड स्टॉक। रिटेन्ड अर्निंग्स, आज तक का नेट इनकम का टोटल जो है, जितना भी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट से पड़ा है, सो वॉट एवर इज योर नेट इनकम, नेट इनकम में से दो चीजें माइनस होती है। वन इज प्रेफर्ड डिविडेंड, जो मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे देता हूं, एंड नेक्स्ट स्टेप इज कॉमन शेयर होल्डर्स डिविडेंड। कॉमन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद जो पैसा बच रहा है और जितना मैंने सालों तक इकट्ठा किया है, उसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, राइट। whatever I have retained throughout the year in my financial statements, उसको रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं, आज तक का accumulated profits। नेक्स्ट इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। माइनॉरिटी इंटरेस्ट या नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एसेंशियली जब हम कंसोलिडेट करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वेयर लेट्स से आई हैव 5 सब्सिडरीज, मैं अगर अपना स्टैंड अलोन बैलेंस शीट जब बनाऊंगा तो मैं खाली एबीसी लिमिटेड हूं, तो मैं खाली एबीसी लिमिटेड के एसेट, लायबिलिटीज और इक्विटी दिखाऊंगा। बट इफ आई एम मेकिंग अ कंसोलिडेटेड बुक्स, I will take all the assets, all the liabilities of my subsidiaries as well. उनका भी सारा का सारा प्रॉफिट, सारा का सारा एसेट और लायबिलिटी अपने बुक्स में ले आऊंगा। बट ऐसा जरूरी नहीं है ना कि 100% वो सब्सिडियरी मेरा ही हो। There could be an instance where 10% is held by someone else, 20% is held by someone else. So वो जो 10%, 15%, 20% जो भी है वो अगर किसी और का है तो हम उसको बोलते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, विच इज शोन सेपरेटली इन द इक्विटी साइड एज अ नेगेटिव फिगर। ठीक है, ये मेरा नेगेटिव फिगर में दिखता है, बेसिकली ये मेरा नहीं है, किसी और का है। नेक्स्ट इज ट्रेजरी स्टॉक। ट्रेजरी स्टॉक मतलब जो स्टॉक कंपनी ने रीएक्वायर करके अपने बुक्स में अभी भी रख रखे हैं। सो देयर कुड बी 2 possibilities when company reacquires shares. Either the company can cancel off the shares, वो shares अब shares रहे ही नहीं है, वो issued से direct authorized में चले गए, ठीक है, issued capital ही कम हो गया है, और they can keep those shares in the balance sheet and reissue them in the future। ठीक है, तो अगर उन्होंने अपने बैलेंस शीट में ही रख रखा है तो उसको ट्रेजरी स्टॉक बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज accumulated OCI।
अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में मैंने अगेन वी डिस्कस्ड इन द लास्ट टाइम कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या आता है, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर को इफेक्ट करता है बट अगर नेट इनकम में आ गया है तो वो नहीं है, और अगर कोई ट्रांजैक्शनल हो रहा है जैसे इशू या फिर री इशू या रीएक्विजिशन, वो सबको हटाने के बाद अगर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को उसका प्रॉफिट बढ़ाने वाला या घटाने वाला है, दोज आर क्लासिफाइड अंडर OCI, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या क्या आता है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एसेंशियली देयर आर 4 पार्ट्स, ठीक है, और भी चीजें हो सकती हैं, इट्स नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, बट ये 4 चीजें तो OCI होती ही है। And it will be better, like I wouldn't recommend to learn what are those 4 things, but आप एक एक्रोनिम याद कर सकते हो, चैप, ठीक है। ये चैप याद रखना तो आपको याद हो जाएगा कि OCI में क्या रहेगा। चैप इज बेसिकली एन एक्रोनिम फॉर करेंसी ट्रांसलेशन गेन्स एंड लॉसेस, हेजिंग डेरिवेटिव्स गेन्स एंड लॉसेस, available for sale securities gains and losses, and pension liability adjustments, ठीक है। फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन में अगर कोई भी गेन या लॉस हुआ है तो OCI में जाएगा। कोई भी हेजिंग डेरिवेटिव के टाइम कुछ अनरियलाइज्ड गेन या लॉस है, आज के डेट पे हेजिंग अगर आपने किया तो आपको पता रहेगा कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या लॉस क्या है, वो भी चला जाएगा OCI में। अनरियलाइज्ड गेन्स एंड लॉसेस ऑन अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज, क्योंकि वो अवेलेबल फॉर सेल है, मतलब कभी ना कभी वो फ्यूचर में तुरंत बिकने वाला है, सो उस पे भी अगर कोई अनरियलाइज्ड गेन्स एंड लॉसेस है, इट विल गो टू OCI। एंड द लास्ट पार्ट इज पेंशन लायबिलिटी में अगर कुछ एडजस्टमेंट हो रहा है विच इज नॉट डायरेक्टली कोटेड इन द नेट इनकम, तो वो भी OCI में जाएगा। सो दिस इज योर कंप्लीट बैलेंस शीट that we have talked in detail. Asset is equal to liabilities and equity. Thank you.